these are the precursor cells which has the capacity to self-renew. Definition of embryonic stem cell, that a cell which got separated from a blastocyst stage of an embryo has the capacity, is a pluripotent cell and has the capacity to transform into any different type of cell within the body, which is from three different layers: meso, ecto, or endoderm. These are the products which are being produced by any cell, like a stem cell or a normal healthy body cell, which wants to transmit cell for a cell wants to send a message to another cell. What is induced pluripotent stem cell? That we treat an adult stem cell in the lab, and that gets all the qualities of a embryonic stem cell. It's a known fact that the best cells are considered to be embryonic, then induced pluripotent, then adult stem cells. Exosomes are basically extract or a final product of a stem cell. Every parent should get his kid checked in once at least till the age of 5 या 5 साल की एज अच्छा। तक उनका Hello and welcome everyone to our very special episode of the Homeostasis podcast. जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हैं. He is a very well known ophthalmologist and a vitreoretinal surgeon. लेकिन मेरे लिए छोटे भाइयों की तरह है. He's been with me since high school. कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में हम लोग इकट्ठे थे. उसके बाद किंग एडवर्ड में he was my junior और we've been in touch until recently. Or it's my pleasure, it's an honor for me कि he's joining us for this podcast today. उनका complete introduction to possible नहीं है because of so many things that he's doing these days. Mashallah, he's a very versatile person, ना सिर्फ medically but socially, और जो philanthropic work है उनका वो भी बहुत vast है. लेकिन briefly मैं आपको बताता चलूँ, he is a graduate of King Edward Medical University और उसके बाद उधर से ही उन्होंने अपनी ऑफ्थल्मोलॉजी में फेलोशिप की, फिर विट्रियोरेटिनल सर्जरी में फेलोशिप की. उसके बाद उन्होंने अंकारा यूनिवर्सिटी से विट्रियोरेटिनल सर्जरी में मजीद ट्रेनिंग हासिल की. He is FCPS in ophthalmology. He is also MRCS from Royal College of Edinburgh. He is diplomat American Board of Regenerative Medicine. और इनकी स्पेशलिटी के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इनसे डिस्कस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में इवन यूएस में, यूरोप में, यूके में बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत कम अवेलेबिलिटी है. एंड ही इज़ प्रोवाइडिंग दिस वेरी स्पेशल, सोफिस्टिकेटेड, हाइली इनोवेटिव सर्विस to the people of Pakistan. Alhamdulillah, he is practicing in Lahore. Currently, Jinnah Hospital में senior registrar हैं. He is also the founder and director of Ibrahim Eye Center. और इनसे इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल जानेंगे. But also for people's interest, ये हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसके भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं for last 5 years. तो पिछले 5 साल में हमारी पाकिस्तानी टीम की जो भी परफॉर्मेंस रही है उसमें इनका भी बड़ा हाथ है. To welcome Dr. Irfan Karamat, thank you very much for joining us thank and you. thank you very much for taking time out to discuss stem cell therapy today. Player is all mine, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. तो ये बताएं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इतने कैच क्यों छोड़ती है और इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? सर उसके लिए हम बहुत सारा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नए कोचेस को ट्राई कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप फ्यूचर में उनको बहुत अच्छा परफॉर्म करता भी देखेंगे. दे आर पुटिंग देयर बेस्ट. लेकिन कभी कभार माशाल्लाह. आप अपने उसमें नहीं होते हैं, फॉर्म में नहीं होते हैं, तो वो में नहीं दिस इज होते. जस्ट अ लक. लेकिन इंशाल्लाह दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू बी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. लेकिन इसमें उनकी आंखों का कोई कसूर नहीं है. मतलब आई एग्री विद यू. अल्हम्दुलिल्लाह. इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट. माशाल्लाह, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू. They're very तो kind ये of you. It's बताएं कि just आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया, लेकिन जस्ट टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ फैमिली के दौरान. जस्ट टेल अस अबाउट योरसेल्फ फॉर द पीपल हु डोंट नो यू. so very few. First of all, thank you, Dr. Ahmed, rather Ahmed Bhai. I would love to call you Ahmed Bhai. Reason being that थैंक यू. हम दोस्त हैं पिछले almost 20-25 years से, और मैं सही बात I है. feel proud in this. Whenever I get an opportunity to talk to you, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं वो टाइम आपके साथ स्पेंड होता है.
Anyhow, मैं आई एम गिविंग माय सर्विसेज इन जिन्ना हॉस्पिटल, और उसमें जो आई एम देयर वर्किंग एज विट्रो रेटिनल सर्जन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वर्किंग एज अ मेडिकल डायरेक्टर इन इब्राहिम आई सेंटर। और प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज स्टेम सेल थेरेपी, और उसमें ऑप्थेल्मोलॉजी में इट्स अ ब्रेक थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग hand in hand with international standards to give our patients the best quality service in Pakistan. जबरदस्त। तो ऑफ्थेल्मोलॉजी और फिर विट्रियो रेटिनल सर्जरी, इसके बारे में थोड़ा सा फर्क बताएं कि ऑफ्थेल्मोलॉजी की फेलोशिप के बाद विट्रियो रेटिनल सर्जरी की जो आपने फेलोशिप्स की हैं जी, पाकिस्तान से भी और तुर्की से भी, जी। उसमें एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज आप किस चीज में हासिल करते हैं? After doing MBBS, you get a 4 year degree in ophthalmology, that is FCPS in Pakistan. That is considered हम्म। to be the best degree in Pakistan, fellowship of College of Physicians and Surgeons. उसके बाद इन ऑप्थेल्मोलॉजी देयर आर डिफरेंट सब स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज, जिसमें ग्लोकोमा है, काला मोतिया जिसको बोलते हैं, कॉर्निया जिसको करीना भी बोलते हैं, रेटिना जिसको हम्म। नूर का पर्दा बोलते हैं। जो रेटिना है हम्म। उसकी स्पेशलिटी जो है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रो की। बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में, प्रोफेसर अली हैदर शहीद, प्रोफेसर नदीम रियाज साहब मेरे टीचर, प्रोफेसर तारिक खान साहब, प्रोफेसर नदीम हफीज़ भट्ट साहब, इन सब ने बहुत सारा अच्छा काम किया। पाकिस्तान पिछले 20 साल में रेटिना की जो सब स्पेशलिटी है उसको बहुत अच्छा फ्लरिश किया। I got an opportunity, alhamdulillah, to work in Neo Hospital for 2 years for my second or super specialty fellowship. Or my supervisor was Professor Dr. Harun Tayyib, and he's one of the best VR surgeon in across country. एंड रेटिना में आप नूर के पर्दे का ऑपरेट सीखते हैं, और उसमें जो होने वाली मुख्तलिफ बीमारियां हैं जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इस्कीमिक रेटिनोपैथी है, हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर की वजह से पर्दे पे प्रॉब्लम आता है, इसके साथ हम्म। साथ यूवियाइटिस या सोजिश की वजह से पर्दा जो खराब होता है, या फिर पर्दा अपनी हम्म। जगह से उखड़ जाता है और वो मुकम्मल तौर पर खराब हो जाए तो उसको हम ऑपरेट के थ्रू दोबारा जोड़ते हैं। ये सब की सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो वीआर सर्जन या विट्रो रेटिनल सर्जन केटर करता है, और रेटिनल सर्जरी और स्पेशलिटी इसी के लिए डिजाइन की गई। तो आई खुद एक छोटा सा ऑर्गन है और उसके पीछे रेटिना उससे भी ज्यादा बारीक और उससे भी बहुत ही किस्म सोफिस्टिकेटेड किस्म का काम है। तो हम जैसे लोग तो इस तरह का सोच भी नहीं सकते, हम तो शेव करते हुए भी 3-4 कट लगा देते हैं। तो इतनी सोफिस्टिकेटेड सर्जरी के अंदर जाने का आपने कैसे सोचा और आपको कैसे लगा कि मैं इतना बारीक काम कर सकता हूँ? सर इट वाज अ चैलेंज, नॉट फ्रॉम द डे, फ्रॉम द वेरी ओल्ड टाइम्स। तो और फिर ये कि जब ऑफ्थल्मोलॉजी का डिसाइड किया तो उसमें जो सबसे अच्छा जो और सबसे सबसे सोफिस्टिकेटेड काम लगा, नो डाउट इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफ, आई थिंक इट्स द टफेस्ट सर्जरी, और इट्स नेक्स्ट टू न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज। तो इसको मास्टर करना और इसमें अपनी स्किल्स को पॉलिश करना, आई टुक इट एज अ चैलेंज, एंड दिस वाज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट व्हिच got developed right from the day one when I got into ophthalmology. मेडिकल फील्ड से नहीं वाबस्ता हैं उनके नॉलेज के लिए, दिस इज पार्ट ऑफ द आई जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस कैन कॉज ब्लाइंडनेस। जी, तो अगर आप उनका सही इलाज ना करें या टाइमली इलाज ना करें या अच्छे डॉक्टर से इलाज ना करा सकें, तो यू बिल्कुल, कैन बी ब्लाइंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इज बिल्कुल दैट सर, राइट? इट्स एब्सोल्युटली राइट। और प्रॉब्लम वाला पेशेंट हो, और हु हैड दिस एक्सपीरियंस कि जब रेटिना में प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट की जो लाइफ में कितनी हर्डल्स आ जाती हैं, और व्हेन यू सॉल्व देम जो सेटिस्फेक्शन है वो सर नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल है। तो माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसमें मजीद तरक्की दे। तो लेट्स डेल्व इनटू आवर टॉपिक फॉर टुडे, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन हमारी पॉडकास्ट जो होम्योस्टेसिस पॉडकास्ट है दैट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स जनरल पब्लिक, क्योंकि आजकल लोग गूगल से, चैट जीपीटी से, डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो लोग एविडेंस बेस्ड काम कर रहे हैं, वो अपना नॉलेज और अपनी जो विजडम है वो जनरल पब्लिक के साथ इस तरह शेयर करें कि पब्लिक कैन अंडरस्टैंड देयर मेडिकल प्रॉब्लम्स, और जब वो फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं या हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो दे कैन हैव एन एजुकेटेड कन्वर्सेशन एंड देन सर, होपफुली गेट टू द राइट पीपल टू गेट द राइट ट्रीटमेंट। सर, तो इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि जनरल पब्लिक के लिए, नॉन मेडिकल पर्सनल के लिए आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टेम सेल्स? सर, स्टेम सेल्स क्या होते हैं और रीजनरेटिव मेडिसिन में व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट? सर मैं इसको
कोशिश करूँगा कि इनको इसको आसान अल्फाज में आपको बयान कर सकूँ। अगर मैं इसको एक एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो हम इसको करेंगे कि दीज आर द प्रिकर्सर सेल्स which has the capacity to self renew and they can generate new mature cells। यानी कि हम्म, ये वो सेल्स हैं, ये जिस्म का वो हिस्सा है या वो खास खुलिये हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपने आप को, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सेल्फ हीलिंग की उनके अंदर एक कैपेसिटी है। दे कैन हील देमसेल्फ। अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये क्वालिटी रखी है। या फिर वो अपने आप को डिजीज सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। सो जो आम आदमी के लिए ये दो बातें समझना बड़ी अहम है कि जो स्टेम सेल्स है आमतौर पर समझा जाता है कि ये कहीं भी जाकर पुराने या डेड सेल्स को रिप्लेस करके नया सेल बना देते हैं। स्टेम सेल के दो काम हैं। वो जाकर हीलिंग करता है, वो ऑलरेडी डिजीज सेल को जाके उसके ऊपर एक्ट करता है और उसको हील करने की कोशिश करता है। कैसे करता है वो डिस्कस। और दूसरा, अगर वो हील नहीं हो पाता तो इट हैज द हम्म, कैपेसिटी टू रिप्लेस दैट प्लेयर और रिप्लेस दैट सेल सो दैट इट कैन वर्क एज द परफेक्ट नॉर्मल हेल्दी सेल। तो दो बातें हमने इसमें इस डेफिनेशन में देखी। इट हैज द कैपेसिटी टू सही सेल्फ हील एंड इट कैन रिप्लेस। सो दिस इज द सही स्टेम। सॉरी, दूसरा आपका जो सवाल का पार्ट था कि इसमें रीजनरेटिव में stem cell is the pivotal player, or it has the most important role in regenerative therapy because we want to replace or heal those diseased or dead cells in the body। तो हमें उनकी और रिप्लेसमेंट का कोई और तरीका नहीं मिल रहा, तो हमने रीजनरेटिव वाले टूल्स इस्तेमाल किए और उसमें जो स्टेम सेल है दैट इज द बेस्ट टूल। सही। तो जो स्टेम सेल्स हैं वो कितनी तरह के स्टेम सेल्स हैं और कहाँ से आते हैं? जी सर। स्टेम सेल्स primarily there are three different types: so embryonic stem cells, adult स्टेम सेल्स और इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। ये आते हैं, जैसे आप और मैं जानते हैं कि एम्ब्रियो से आते हैं। एम्ब्रियो, व्हाट इज एम्ब्रियो? व्हेनेवर इट्स द ऑर्गेनिज्म राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टू द सेकंड मंथ ऑफ gestation, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जैसे जिसको हम जो जाइगोट है वो पहले मरूला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद फिर फर्दर इट मूव्स ऑन। जो ब्लास्टोसिस्ट है, इट इज द स्टेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स। और ब्लास्टोसिस्ट फर्टिलाइजेशन से 7 दिन बाद जो टिश्यू बनता है यूट्रस में, वी कॉल इट ब्लास्टोसिस्ट। It is a cluster of 32 to 64 different cells which are there, and they has the capacity of to transform, or all those 32 to 64 cells has the capacity कि वो डिफरेंट, हर कोई एक पूरा एम्ब्रियो बन सकता है। ठीक है, तो हम उनको टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं। उनसे उन 64 सेल्स से फिर नेक्स्ट स्टेज बनती है ब्लास्टोसिस्ट की। आई होप मैं बोरिंग नहीं हूँगा, अगर मैं बोरिंग हूँ तो आप मुझे बता नहीं नहीं, दीजिएगा। दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन और ये जी पॉडकास्ट लाइक आई सेड उन लोगों के लिए है जो इस टॉपिक को समझना चाहते हैं। तो आई थिंक वी नीड टू गो इनटू डिटेल्स कि जितनी आप ओके डिटेल्स प्रोवाइड कर सकें। सर। बाकी जिसको बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, वी हैव चैप्टर्स ऑन द पॉडकास्ट सो दे कैन स्किप टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट। Sure. So the blastocyst is the stage at which the embryonic stem cells can get set. We can get the embryonic stem cells. ये वो cells हैं और cluster of cells हैं which have the capacity, which are known as pluripotent cells. Now what we just said, read totipotent cells. Now I'm talking about pluripotent cells. Now pluripotent cells has the capacity that they cannot transform into a whole new embryo, but they can transform into all endo, ecto और mesodermal cells। ये तीनों लेयर्स में से किसी भी तरह का कोई सेल जो बना सकती हैं, दे हैव दैट कैपेसिटी। Now, सही this is the definition of embryonic stem cell, that a cell which got separated from a blastocyst stage of an embryo has the capacity, is a pluripotent cell, and has the capacity to transform into any different type of cell within the body, which is from three different layers: meso, ecto, or endoderm। So this is a, you can say, a easiest form of explaining it। Now we talk ठीक है। about adults। Now embryonic stem cells सबसे स्ट्रॉन्ग मोड समझा जाता है। ये वो सेल्स हैं जो रिजेनरेटिव थेरेपी में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं। दे कैन, इफ
वी गेट अ चांस कि हमें कहीं पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इंजेक्ट करने पड़ जाए, तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हील करते हैं जाके। लेकिन इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम्म, हम वो प्रॉब्लम्स हम फर्दर इसको डिस्कस भी करेंगे। जो अडल्ट स्टेम सेल्स हैं दे कम फ्रॉम द बॉडी, और ये अडल्ट की या ऑटोलोगस सोर्स से आती हैं। जैसे अगर मैं हूँ, मेरी बॉडी के जो जो सबसे जो समझाने के लिए सबसे इजी एग्जांपल है वो ब्लड है। जो ब्लड के अंदर हम्म, मैं जो अगर मैं निकाल सकूं तो यहाँ से मैं अडल्ट स्टेम सेल सेपरेट कर सकता हूँ जो बोन मैरो से। एपिथेलियम हैज स्टोरेज फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ अडल्ट स्टेम सेल्स। दे आर द सेल व्हिच हैज द कैपेसिटी ऑफ मल्टीपोटेंसी। अब पहले हमने इम्पोर्टेंट पढ़ी, हम मल्टीपोटेंट पढ़ेंगे। नाउ वो द मल्टीपोटेंसी हम्म, इज अ टर्म व्हिच इज अ बिट रिस्ट्रिक्टेड, कि इनकी जो सेल लाइनेज है इसमें भी बड़ी अच्छी सेल्फ हीलिंग और रिप्लेस करने की कैपेसिटी है। लेकिन हम्म, ये उतना तीनों लेयर्स की में डिवाइड नहीं हो सकता। ये कुछ स्पेसिफिक जो सेल लाइंस हैं, जो जहाँ से जैसे अगर अगर हार्ट के कुछ कंपार्टमेंट्स हैं और उनमें भी एक स्टोरेज है एडल्ट स्टेम सेल्स की, वो सेल्स हम्म, सिर्फ हार्ट की ही सेल्स को फर्दर लेके चलेंगे। या सही। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ऐसे एडल्ट स्टेम सेल्स के सोर्सेज हैं जो मेसेंकाइमल रीजन के हैं, वो सिर्फ मेसेंकाइमल रीजन के सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सके। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज स्टेम सेल्स, mesenchymal stem cells sourced from bone marrow और फैट टिश्यू, ये जो जिसको हम एसटीएफ भी बोलते हैं, और अडल्ट स्टेम सेल की एग्जांपल्स हैं। फिर एक आती है इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल। नाउ व्हाट इज इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल? दैट वी treat an adult stem cell in the lab, and that gets all the qualities of a embryonic stem cell. अब जो इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल है उसको हम ये कह लें कि आपने हमने उसको लैब में ट्रीट किया। कैसे ट्रीट किया, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वो अभी हम उसको उसमें डिस्कशन नहीं जाते। लेकिन वो क्या है कि उसको ट्रीट होके वो दोबारा अपनी एक प्रिमिटिव स्टेज पे आ गया, जिसमें अब वो किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इन तीनों टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स की अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम्म, चलिए जबरदस्त। ये तो आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपने बिल्कुल कहा एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल, दैट साउंड्स लाइक इट्स द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, लेकिन उसकी डाउन साइड क्या है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यूज सर। करने की? और फिर एडल्ट की और प्लूरिपोटेंट की भी बता दीजिएगा। सर, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, उस स्ट्रेंथ के तौर पे स्टेज करें तो आई वुड से दैट, और इट इज ऑलरेडी इट्स अ नोन फैक्ट दैट द बेस्ट cells are considered to be the embryonic, then induced pluripotent, then adult stem cells. But having said that, cause of जो adult और सॉरी embryonic और induced pluripotent stem cells हैं, they have some ethical issues as well. पाकिस्तान हम्म, में इट्स कम, जो हमारी हेल्थ केयर कमीशन है या पी होटा है, पंजाब जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एथिकली अप्रूव नहीं करते। फिर दे कैन अच्छा। बी अ सोर्स ऑफ कैंसर पेशेंट इन द पेशेंट। इनकी जो प्रोलिफरेशन है वो अनकंट्रोल्ड हो सकती है। इट कैन गिव राइज टू कैंसर इन और टेराटोमा इन द पेशेंट, विच कैन नॉट बी जस्टिफाइड। और फिर ये कि एम्ब्रियो से जब हम सेल लेते हैं तो हम उस एम्ब्रियो को भी डैमेज कर सकते हैं जहां से हम ये सेल ले रहे हैं। अगेन इट्स हम्म, अनदर एथिकल इशू जो वर्ल्ड वाइड इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनकी डाउन साइड आप कह दीजिए एम्ब्रियोनिक की और इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की। इसके बरक्स अगर हम एडल्ट स्टेम सेल्स को देखें तो दे आर मोस्टली फ्रॉम द ऑटोलोगस सोर्स। वो सेम हम्म, बॉडी से हम लेते हैं, जिसमें कोई एथिकल इश्यूज नहीं आते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं रहता है। और तीसरी चीज़ ये कि कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आता है, कोई अनचेक्ड इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी में या ऑटोम्यून कुछ प्रॉब्लम इस तरह का एक जनरेट नहीं होता है। और फिर उसके बाद जो सबसे बढ़ के है कि ये अपना काम भी एक खास हद तक अच्छे तरीके से करते हैं। सो सही। ये डिफरेंट एक मिक्स एंड मैच है तीनों का। तो आई की ट्रीटमेंट, आई प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट के लिए आप कौन से स्टेम सेल्स ज्यादा यूज करते हैं? सर है रिजेनरेटिव थेरेपी की और स्टेम सेल्स की, इसको मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूँगा कि हम जो भी रिजेनरेटिव थेरेपी है उसमें तीन मोडालिटीज आती हैं। स्टेम सेल्स हैं जिसके ऊपर अभी हमने बड़ी अच्छी एक डिस्कशन की। इसके अलावा जो दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो हैं एक्सोसोम्स, और तीसरी चीज़ है हम्म, पीआरपी या ग्रोथ फैक्टर्स, जिसको प्लेटेड रिच प्लाज्मा भी बोला जाता है। इन दोनों का जिक्र अगर हम नहीं करेंगे तो शायद रीजनरेटिव थेरेपी की प्रॉपर एक पिक्चर हमारे जहन में नहीं बनेगी।
स्टेम सेल्स को अभी हमने डिस्कस किया, उसको हम अभी एक साइड पे रखते हैं, उसके उसके साथ साथ हम एक्सोसोम्स को, पीआरपी को डिस्कस करते हैं. So जी exosomes are considered are extracellular vesicles or EVs. They are used in the worldwide at the moment in different modalities or different specialties. Exosomes are considered to be the एक transmitters हैं, cell to cell जो पूरे communication है उसमें बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं. These are the enzymes और proteins हम्म, और RNA particles और आप कह सकते हैं कि they are the messengers basically, जो एक सेल का मैसेज दूसरे सेल तक लेके जा रहे हैं. And the most important thing about exosomes are they are acellular products. These are the products which are being produced by any cell, like a stem cell or a normal healthy body cell, which wants to transmit cell for, which want to send, if a cell wants to send a message to another cell, exosomes are there which perform this duty. सो मोस्ट ऑफ द टाइम लेट्स से अगर हम ऐसी सिचुएशन में हों कि जिसमें हम हमें एथिकल इश्यूज हों और हम सेलुलर प्रोडक्ट एथिकल इश्यूज की वजह से, हेल्थ केयर कमीशन की वजह से ना दे सकें, तो हम एक्सोसोम्स यूज कर सकते हैं. एक्सोसोम्स आर बेसिकली एक्सट्रैक्ट और अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ स्टेम सेल. स्टेम सेल की अंदर हम्म, तो एक कैपेसिटी है ना कि वो एक्सोसोम्स प्रोड्यूस करता रहेगा, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता रहेगा. लेकिन अगर हम किसी जगह पे फॉर द अगर स्टेम सेल ना देना चाहें, तो हम एक्सोसोम्स यूज कर सकते हैं. एक्सोसोम्स वही काम करेंगे जो एक स्टेम सेल करेगा, लेकिन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. यू आर गेटिंग. अच्छा वो यस लॉन्ग यस टर्म नहीं होगा. वो सही हम एक जगह पे एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम एक फैक्ट्री वहां पे एक इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं. और मे बी दिस इज राइट एग्जांपल कि हम सिर्फ प्रोडक्ट वहां पे दे रहे हैं ताकि वो अपना काम थोड़ी देर के लिए करे. हम एक फैक्ट्री वहां पे नहीं हम्म, इंस्टॉल कर रहे. Or that is again a third type of regenerative modality in which it has certain growth factors, or the rich plasma have drive growth factor, or vascular endothelial growth factor, or there's a long list of growth factors there, again which help us to improve a microenvironment of a certain tissue. जैसे आपने हम्म, देखा होगा कि अक्सर लोगों की जॉइंट्स में पेन आती है, तो वहाँ पे पीआरपी की जाती है. अगर किसी का हेयर फॉल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पीआरपी आम तौर पे हर जगह पे लोग इन दो एग्जांपल से तो बहुत अ, बखूबी वाकिफ भी हैं. तो अगर ये हॉस्पिटल इन्वायरमेंट को कूल डाउन करते हैं, और फिर हम वहाँ पे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट उसको ऑफर किया जा सकता है पेशेंट को, और इट वर्क्स वेरी वेल. So there are three different modalities in regenerative therapy. One is PRP, second is exosomes, and हम्म। third is stem cells. जबरदस्त। तो अब आपने कैनवस मजीद ब्रॉड कर दिया है। हम जी. कोशिश कर रहे थे कि आज आपसे स्टेम सेल समझ लें, आपने दो और चीजें डाल दी होमवर्क में। लेकिन ये बताएं कि आप आप ऑफ्थेल्मोलॉजी में आई डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट, हाँ जी. कौन सी नाउ मोडेलिटी ज्यादा नाउ यूज करते जी हैं? जी. नाउ विल कम बैक टू योर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ये पहले बात को इसको एक्सप्लेन करना थी. हाँ नहीं, पर डेफिनेटली दैट्स वेरी हाँ, गुड टू नो। जी हाँ जी. अच्छा, अब ऐसा है कि आई में बेसिकली अगर आप अभी आज भी अभी अगर आप गूगल सर्च करें और उस पर स्टेम सेल ऑप्थेल्मोलॉजी एंटर करें, तो शायद इन लास्ट 2 इयर्स जो सबसे ज्यादा सर्च होगी होगी टॉपिक्स उस पे, वो शायद स्टेम सेल्स होंगे. हम्म, सब फैक्ट. और जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आई में रिसर्च हो रही है, वो है इनहेरिटेड रेटिनल डिजीजेस. एक लंबा कैनवस है, उसको हम डिस्कस करते हैं. ऑप्टिक पैथोलॉजीज, ऑप्टिक नर्व पैथोलॉजीज, और ऑकुलर सरफेस डिसऑर्डर्स लाइक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, और कॉर्नियल नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर्स, और रिकरेंट कॉर्नियल अल्सर्स. वन, इनहेरिटेड रेटिनल डिजीजेस जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही हैं, या फिर ऑप्टिक नर्व की तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट पैथोलॉजीज. एंड थर्ड इज ऑक्यूलर कॉर्नियल सरफेस डिसऑर्डर्स, ऑक्यूलर सरफेस डिसऑर्डर्स. ये तीन चीजें. हम्म। तो इसमें स्टेम सेल यूज हो रहा है या पीआरपी और जी, एक्सोसोम्स जो आपने जिक्र किया वो भी आप यूज कर रहे हैं? बिल्कुल सर. इसमें इफ यू अलाउ मी रादर, आई वुड लव ऑफ टू कोर्स। शो यू अ स्लाइड. I have your slide panel with me, so you want me to upload anything or you have यस सर. the इफ यू कैन स्विच टू स्लाइड uh, 5. slide 5? सर, अभी आप एक कलर्ड फोटो, एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें दो साइड बाय साइड तीन रेटिना की जो माइक्रोस्कोपिक एक व्यू दिया जा रहा है. अगर हम्म, तीन है, अगर आप एक्सट्रीम राइट पे देखें, तो एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें रेटिना की 10 लेयर्स को स्केच किया गया है.
सही। आर यू गेटिंग इट अहमद भाई? जी, जी, जी। आप तो समझ जो जिसके ऊपर नॉर्मल रेटिना लिखा हुआ है, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी, नॉर्मल रेटिना पे जो एक एक जो स्केच की गई है उसमें हुँ, डिफरेंट नर्व फाइबर लेयर है, गैंग्लियन सेल लेयर है। ठीक साथ है, में उसकी जो एक मैग्नीफाइड व्यू हमें नॉर्मल स्टेन्ड रेटिना का अंडर माइक्रोस्कोप मिल रहा है। और जो ठीक है। थर्ड पार्ट है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या इनहेरिटेड रेटिनल डिजीज, इसमें हुँ, क्या है जो आउटर डिजीज पार्ट है इनहेरिटेड रेटिनल डिजीजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जिसको हम सही, अंधराता भी बोलते हैं। जो सही। अंधराता है जो जिसकी इस वक्त दुनिया में ऑलमोस्ट 2 मिलियन प्लस पेशेंट्स हैं और इसमें ये फैमिलीज में बहुत कॉमनली रन करता है। इसमें पेशेंट को रात को नजर आना बंद हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर दिन की नज़र भी खराब हो जाती है। इसमें होता क्या है कि रेटिना में जो रॉड्स हैं जो रात के वक्त हमें दिखाते हैं वो वो उनका फंक्शन लॉस होता है और वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। हुँ, अगर आप इस रेटिना को देखें तो जो एक सर्कल है जिसमें डैमेज डॉर्मेंट रेटिनल सेल्स हैं, वो इस वक्त अगर डैमेज हो चुके हों, तो जो इनर रेटिना है, जो जो इससे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है, वो फंक्शन ऑलमोस्ट 30-40% नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है। इसको हुँ, और अगर हम इस टाइम पे कोई भी जैसे पीआरपी है, एक्सोसोम्स हैं, स्टेम सेल्स को अगर इंजेक्ट करें, तो फिर क्या होगा कि ये अगर रॉड एंड कोन्स काम करना ठीक शुरू कर देंगे, तो इनर रेटिना भी काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर इनर रेटिना अगर ठीक है और डिजीज आउटर रेटिना में है, तो वो इसको जो इनर रेटिना है उसको फंक्शन प्रॉपर नहीं करने देता। ये जो लेकिन सर्कल अगर बना रॉड हुआ है, सफ़ेद सर्कल जो बना हुआ है, ये इनर रेटिना के जी ऊपर है? सर, ये आउटर रेटिना के ऊपर ये है, जो आउटर सफेद रेटिना के सर्कल ऊपर है, बना जो है, ये ऊपर आउटर वाला रेटिना पोर्शन है वो इनर रेटिना है। जो इनर रेटिना है। अगर आप ठीक है। इसको पढ़ें जो इनर इनर आउटर रेटिना क्यों है कि डैमेज डॉर्मेंट रेटिनल सेल्स कैन बी हुँ, एक्टिवेटेड बाय ग्रोथ फैक्टर्स। सही। ये जो डैमेज सेल्स हैं, अगर आप इस वक्त स्टेज स्लाइड 4 पे जाएं तो 3 स्लाइड्स की चीज मिलेगी जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है हेल्थी रॉड एंड कोन्स, फिर है हुँ, डॉर्मेंट रॉड एंड कोन्स, फिर है एपोप्टोसिस। इनहेरिटेड रेटिनल डिजीज हिट करती है आंख को, उस वक्त जो हेल्थी रॉड एंड कोन्स हैं वो सबसे पहले स्लीप मोड में चले जाते हैं, जिसको हम डॉर्मेंट रॉड एंड कोन्स कहते हैं। ठीक है। सही। अगर इस टाइम पे भी अगर डिजीज को ट्रीट ना किया जाए या हील ना किया जाए, तो फिर उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है, फिर इट्स अ सेल डेथ स्टेज, हुँ, जहां से रिवर्सल मुमकिन नहीं है। लेकिन हुँ, अगर हम डॉर्मेंट रॉड एंड कोन्स या स्लीपिंग रॉड एंड कोन्स की स्टेज पे इस डिजीज को ट्रीट करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ एक्सोसोम्स, पीआरपी और स्टेम सेल्स, तो ये वापस अपनी हेल्दी स्टेज में जा सकते हैं। हुँ। आई होप आप इस बात को आपने फॉलो किया। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, समझ आई। अच्छा, अच्छा इस चीज़ को हालाँकि इस हालाँकि मेरा ऑप्थेल्मोलॉजी में गोल्ड मेडल था, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें भूल चुकी है, तो आपने अच्छा किया रिमाइंड करा दिया। तो सर, रॉड्स और कोन्स का सर, फ़र्क भी भूल गया था। सर। अच्छा अब ये रॉड एंड कोन्स जो हैं ये डेथ से पहले या एपोप्टोसिस से पहले एक डोर्मेंट फेज़ में जाते हैं। अगर ये डोर्मेंट फेज़ को हील ना किया गया, तो ये फिर पेशेंट जो ये सेल्स हैं ये एपोप्टोसिस पे चले जाते हैं। हम ये समझते हैं या हमारा जो डाटा है या हमारी जो रिसर्च है, वो ये समझती है कि जो रॉड एंड कोन्स हैं ये डोर्मेंट फेज़ में इसलिए जाते हैं कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। ये जो रेटिना का एक लेयर जिसको हम आरपीई बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, जिसमें ये रॉड एंड कोन्स एम्बेड अल्लाह ताला ने किए हुए हैं, ये सब इसके अंदर बिल्कुल आप कह लें कि बीज की तरह इस जमीन के अंदर बिल्कुल दे आर पेनिट्रेटिंग द आरपीई। अगर वो आरपीई प्रॉपरली काम नहीं करी होती तो ये डॉर्मेंट फेज में चले जाते हैं और फिर वो डॉर्मेंट फेज से अपोप्टोसिस पे चले जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उस आरपीई को, उस जमीन को विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव मोडालिटीज दैट इज ईदर पीआरपी, दैट इज एक्सोसोम्स और स्टेम सेल्स, उसको हील करने की कोशिश करते हैं। वो आरपीई अपनी अपनी ही कैपेसिटी में या उस डिजीज फॉर्म से थोड़ी हेल्दी फॉर्म में आती है और वो इन रॉड एंड कोन्स को दोबारा आप कह लें कि जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको कैप्चर करना शुरू करती है और इनको न्यूट्रिशन देना शुरू करती है, जिससे ये दोबारा हेल्दी फेज में चले जाते हैं एंड पेशेंट फील्स इंप्रूवमेंट इन हिज विजन एंड हिज विजुअल फंक्शंस। ये मैं इनहेरिटेड रेटिनल डिजीज के बारे में मैंने बात की अभी। सही। आई होप के दिस वाज नॉट बोरिंग। नहीं, नहीं, डेफ़िनिटली दिस इज़ वेरी एनलाइटनिंग और नॉलेजेबल। तो ये बताएँ कि ये चीज़ बेसिकली इनहेरिटेड है, तो इट प्रेज़ेंट्स राइट आफ्टर बर्थ जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, या कुछ
सालों के बाद जाके मैनिफेस्ट करती है? जी सर, जो इनहेरिटेड रेटिनल डिजीज़ेज़ हैं, इनहेरिटेड रेटिनल डिजीज़ का कैनवस बहुत ब्रॉड है। देयर आर मल्टीपल डिजीज़ेज़ लाइक रॉड एंड कोन डिस्ट्रॉफी, स्टारकार्ट डिजीज़, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डिजीज़ेज़ एंड सो ऑन, जो हमें बहुत कॉमनली जो है वी कम अक्रॉस दीज़ डिजीज़ेज़। बिकॉज़ दीज़ आर जेनेटिक प्रॉब्लम्स, दे आर देयर बाय बर्थ। बट मेन प्रॉब्लम होती है जो रेटिना की आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता इस डिजीज की वजह से अपना फंक्शन लूज करती जाती है, और जब ये अपना फंक्शन लूज करती है तो फिर इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि रॉड एंड कोन्स को इफेक्ट करना शुरू करती है। इनिशियली ये जो लेयर है ये हेल्दी होती है, लेकिन अपनी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से इसमें प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, और इवेंचुअली ये बिल्कुल डेड हो जाती है। और जब ये डेड होती है तो इसके अंदर एम्बेडेड रॉड एंड कोन्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आना शुरू होता है, और वो ग्रेजुअली वो वक्त के साथ साथ ये डिजीज जो है प्रोग्रेस करता है। अक्सर पेशेंट जो में इनहेरिटेड रेटिनल डिजीजेस के हमें आते हैं, वो आके हमें बताते हैं कि जी ये बेटा या बेटी बचपन में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन हुँ। जब ये 10 साल के हुए या 15 साल के हुए या 20 साल के हुए तो इनकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम बढ़ती गई, और फिर इवेंचुअली एक ऐसा वक्त आया कि ये बिल्कुल ब्लाइंड हो गए। अब इसमें जो इस डिजीज़ को अगर हम फॉलो करें, तो सबसे पहले ये एक प्राइमरी लॉस आता है, फिर एक सेकेंडरी एनवायरमेंटल लॉस आता है, और फिर उसके बाद फिर पेशेंट की जब जब दिन की विज़न खराब होना शुरू होती है, तो इसका मतलब है रॉड्स की सारी जो स्ट्रेंथ या पॉपुलेशन थी, सारी डेड होगी। अब कोन्स की बारी आ गई। सो इट्स प्रोग्रेसिंग। हमें अगर ये डिज़ीज़ अर्ली पेशेंट, तो हमें उसको थोड़ा ट्रीट करने में मदद मिलती है। और बच्चा क्या कंप्लेन करे तो पेशेंट्स के जो जो पेरेंट्स हैं उनको परेशान होना चाहिए कि हाँ दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ दैट डिजीज, क्योंकि कई बार बच्चे बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी बातें करते हैं या रात के टाइम पे वैसे ही हम उनको जल्दी सोने के लिए भेज देते हैं। रात को नजर नहीं आ रहा तो पता ही नहीं चलेगा काफी अरसे तक कि बच्चे को रात को नजर नहीं आ रहा, तो व्हाट आर द अर्ली वार्निंग साइंस के पेशेंट शुड बी अवेयर ऑफ दोज वार्निंग साइंस के अगर पेशेंट बच्चा ये कंप्लेन कर रहा है तो फौरन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं? सर, ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। असल में देर आर ऑलमोस्ट 250 genes which cause and 250 different types of defects which can further lead to inherited retinal diseases or retinitis pigmentosa or Stargardt. So it's a broad canvas, और हर एक का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और उसकी वजह से जो जो डिजीज का पैटर्न है ना सिर्फ वो चेंज होता है, बल्कि उसकी जो प्रोग्रेशन की स्पीड है वो भी डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे हैं जो 6-7 साल की उम्र में ही दे आर टोटली ब्लाइंड। कुछ हैं जो 35-40 ईयर्स की एज में आके पहले साइंस आते हैं उनको, और उस वक्त उनको पता चलता है कि उनको इनहेरिटेड रेटिनल डिजीज था। इनिशियली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनकी प्रोग्रेशन बहुत तेज चल रही है, वी हैव टू पिक देम अप अर्ली। अच्छा, उनमें जो अक्सर बच्चे, अब बच्चों को तो नहीं पता कि बाकी किस तरह देख रहे हैं, उनके लिए तो वो नॉर्मल है हम्म। एंड दे डू नॉट कंप्लेन। जो बात बच्चों में फ़ौरन से पिक करनी है, कुछ पेरेंट्स बहुत जल्दी पिक करते हैं कि ये नॉर्मल बच्चों की तरह आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, या फिर अच्छा। ये रात को बाहर निकलने से खुद खुद अवॉइड करता है, उसको बाहर खौफ ज़्यादा आता है, अंधेरे में निकलते हुए खौफ ज़्यादा आता है, हम्म। वो कहता है जी मुझे मैंने मैंने रोशनी में रहना है। फिर ये कि चीज़ें पकड़ते हुए वो फ़ौरन से आप हाथ आगे करता है, लेकिन वो चीज़ को 3-4 दफ़ा टटोलता है कि ये चीज़ है, इधर पड़ी है। जूता नहीं लेता, अक्सर चीज़ों में बम्प करता है, और जाके गिरता है तो जोक क्लमजी है बच्चा। ये बड़ा क्लमज़ी, हाँ जी, हाँ जी। और हाँ। पाकिस्तानी तो मतलब पंजाबी तो इसको और भी वो और तरह से फिर याद करते हैं। तो तो ये वो इम्पोर्टेंट साइंस हैं जो पेरेंट्स को थोड़ा-सा इंक्विजिटिव होना चाहिए जिनके बारे में, कि अगर वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह चीज़ें नहीं ग्रिप कर रहा, वो चीज़ों को टटोल के पकड़ता है, अपने इवन जूते से जो है उनको करते हुए लेता है, अंधेरे में जाते हुए बहुत ही घबराता है। ना सिर्फ वो डरता नहीं है, लेकिन वो बहुत घबराता है, वो जाना चाहता ही नहीं है। और इसके साथ हुँ, साथ वो ये भी कि वो मतलब क्लासेस का बड़ा नंबर है, लिखने में बहुत करीब से देखता है, और फ़ोन को हुँ, बहुत करीब कर लेता है, स्क्रीन के बहुत करीब चला जाता है। ये वो साइंस हैं जो हुँ, 3-4 साल 4-5 साल की एज में गैजेट्स की मौजूदगी में हम बड़ी अर्ली पिक कर सकते हैं। तो हुँ, हुँ। आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जाके चेक कराएँ। लेकिन क्या ये डिज़ीज़ इतनी कॉमन है कि हमें कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम इसके लिए एंश्योर कराना चाहिए कि पेशेंट के जो
पेरेंट्स हैं या वैसे अगर बच्चे को कोई आई डिज़ीज़ नहीं है, फिर भी हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप एक दफ़ा डिटेल्ड आई एग्ज़ाम कराएँ, रेटिनल एग्ज़ाम कराएँ या इट्स नॉट दैट कॉमन कि इसके लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह Uh, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? so I won't say that it's that common. Data which got shared in 2018 or 19, which was an international data, that there were almost 2 million patients worldwide. और पाकिस्तान में शायद इससे फिर इसका परसेंटेज बहुत कम होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट वी कम अक्रॉस मेनी पेशेंट्स विद दिस प्रॉब्लम। लेकिन इसके लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम शायद इट्स नॉट दैट कॉमन कि इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम प्लान करना चाहिए। लेकिन ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि every parent should get his kid checked in once at least till the age of 5 या 5 साल की एज अच्छा। तक उनका एक आई एग्जामिनेशन एटलीस्ट जरूर करवा लें पाकिस्तान में। बाकी बाहर तो हम बहुत वी डू हैव मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, लेकिन पाकिस्तान में तो कभी कभार 17-18 साल की एज में जाके पता चलता है कि जी एक आंख हाँ, से वो एम्ब्लायोपिक है और वो नजर ही नहीं आ रहा उस आंख से। जब दिस तक इज वेरी कंप्लेन कॉमन। ना करे कोई हाँ जी, दिस इज वेरी हाँ जी। कॉमन कि जी उन्होंने आंख एक दफा चेक की या किसी आईएसएसबी में गए और उन्होंने जब एक आंख बंद की तो पता चला जी दूसरी आंख से तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा। So this is very common हुँ, in Pakistan. So in early stage, till the age of 5 or 4, we should get at least one examination for every हुँ, kid. ये जरूर होना फॉर चाहिए, एवरी irrespective of the fact कि हमने कोई symptom आया है या नहीं आया। सही, सही। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का आपने ज़िक्र किया, इसके अलावा और कौन-सी बीमारियाँ हैं जो रीजेनरेटिव मेडिसिन से ट्रीट की जा सकती हैं? जी सर, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और इनहेरिटेड रेटिन डिजीजेस, ये तो अभी हमने एक हुँ, स्पेक्ट्रम अभी इसके ऊपर पढ़ा और उसके ऊपर हमने थोड़ा देखा भी कि रेटिना के अंदर जो डिफरेंट लेयर्स हैं, उसमें हुँ, एक लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर थी आरपीई की, जब वो डिजीज हुई तो हमने उसको हील करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ पीआरपी, एक्सोसोम्स या स्टेम सेल्स, और उसने डायरेक्टली रॉड एंड कोन्स का फंक्शन बेहतर किया। और ये एक स्पेक्ट्रम है डिजीजेस का। दूसरी जो एस्पेक्ट है वो है ऑप्टिक न्यूरोपैथीज, जिसमें टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, रिकरेंट ऑप्टिक न्यूराइटिस है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ट्रोमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये तीन चीजें हैं जिनके अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड जस्ट नॉट से कि इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, दे हैव मेरिकल्स रिजल्ट्स एंड माशाल्लाह पेशेंट को बहुत इंप्रूवमेंट आती है अपनी इस रिजनेटिव ट्रीटमेंट के बाद। हुँ, हुँ, जो ऑप्टिक न्यूराइटिस है या रिकरेंट ऑप्टिक न्यूराइटिस है, जिसको मैं आम जुबान में ये कहूँ कि ब्रेन से जो आंख का कनेक्शन है, वो जो लिंक है उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। वो जो ऑप्टिक कनेक्टिंग बॉडी है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, या उसकी सोजिश हो सकती है किसी भी वजह से, या चोट की वजह से वो दब सकती है या कट सकती है, या फिर किसी ड्रग की वजह से, जैसे अक्सर जो हमें मोस्ट कॉमन पेशेंट्स आते हैं वो पाकिस्तान में, चूंकि ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, पीपल टेक एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। हुँ, हुँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग which causes toxic optic neuropathy or हुँ, which leads to permanent blindness in these patients. So, हुँ, patients of toxic optic neuropathy or traumatic optic neuropathy or recurrent optic neuritis gets a very good benefit from regenerative modalities. Regenerative modalities का इसमें rationale क्या है कि regenerative modalities has a paracrine bystander effect on optic nerve. Now, what is paracrine bystander effect? Paracrine bystander effect ये है कि जो ऑप्टिक नर्व है वो एक ऐसा सेंसिटिव टिश्यू है जिसके अंदर जाके हम अगर इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, या उसको ट्रीट या उसको हील या उसको ऑपरेट करके जोड़ा नहीं जा सकता, या उसको रिप्लेस नहीं किया हुँ, जा सकता। हमारे जो जो स्टेम सेल्स हैं, ये इनके अंदर एक खासियत ये है कि ये दे हैव अ पैराकाइन, मतलब जब ये कहीं हम जाके इनको इंजेक्ट करते हैं और इनको स्टिमुलेट करके एक्टिवेट करके इंजेक्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सर्टेन एंजाइम्स और हॉर्मोन्स। ट्रांसमिटर्स, हार्मोन्स, जिसको हम आम जुबान में भी, मैंने एक्सोसोम्स बोला या ईवीज बोला, हुँ, एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल्स बोला, और उनके वहां पे होने पे दे हैव अ इफेक्ट ऑन द टिश्यू। मतलब ये जो इफेक्ट ऑफ दो सेल्स है, दे हैव अ बायस्टैंडर इफेक्ट ऑन द टिश्यू व्हिच इज देयर लाइंग देयर। इसके हुँ, लिए खास टर्म यूज की जाती है जिसको पैराक्राइन बायस्टैंडर फिनोमेना कहा जाता है। ठीक है। तो सही। होगा क्या कि जब हम इंजेक्ट कर देंगे पीआरपी या एक्सोसोम्स या स्टेम सेल्स अराउंड ऑप्टिक नर्व इन डिफरेंट वेज, किस तरह हम पोस्टीरियर सर्पिनॉन आंख के रूट के थ्रू पीछे जाते हैं और ऑप्टिक नर्व जो गुजर रही है उसके गिर्द इंजेक्ट कर देते हैं। वो हुँ, क्या, वो स्टेम सेल्स वहां पे एक डेपोनेंट बना देते हैं एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स एंड दे हैव अ पैराकाइन इफेक्ट ऑन द ऑप्टिक नर्व। और वो उसको अगेन, क्योंकि अगर चोट लगी है
अगर टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, अगर ऑप्टिक नेराइटिस इन्फ्लेमेशन है, तो सोजिश है उस कनेक्शन की, तो वो क्या करेगा, ये इसको हील करने की कोशिश करेगा। एंड इट हैज़ ऑनेस्टली भाई, recently I've just treated a 31-year-old boy with recurrent optic neuritis, and he traveled a very long distance. He came from a very distant place, और वो इतना खुश होकर वापस गया कि, और मुझे दुआएं देते हुए गया कि मुझे बहुत मजा सही, सही। आया। मतलब ये दीज़ आर द डिज़ीज़ेज़ जिनके लिए मेरे ख़्याल में हो सकता है कि मुझे ना मालूम हो, लेकिन 10 साल पहले, 15 साल पहले इन डिज़ीज़ेज़ का, इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं था एंड यू नहीं था जस्ट हैड टू टेल द पेशेंट्स के यू आर गोइंग टू बी ब्लाइंड, यू आर गोइंग टू सर। लूज़ योर विज़न और यू हैव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ़ सर विदाउट योर विज़न। एग्जैक्टली, दिस इज समथिंग विच इज, जो हमें बहुत, मैं आपने बहुत अच्छी बात की। आज से 15 साल पहले तो हम इनको स्ट्रेट अवे सिर्फ एक काउंसलिंग करके भेज देते थे। अब हमने इनको ट्रीट करना शुरू किया है। इवन अब भी हम उस जगह पे नहीं है, इस जगह पे नहीं है कि हम कॉन्फिडेंटली हर पेशेंट से ये हुँ, कह दें कि ये इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन आज से आने वाले 15 साल के बाद आई थिंक ये वो चीज़ होगी जो इसके लिए हुँ। जो इस इन चीज़ों का सोल्यूशन निकालेगी। और वी वुड हैव इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस्ट सॉल्यूशंस थ्रू दिस रीजनरेटिव मोडालिटी फॉर दिस। इंशाल्लाह एंड मे बी दिस आई डिजीजेस की बात कर रहे हैं लेकिन दिस में सेट द स्टेज फॉर डिजेनरेटिव डिजीजेस इन अदर ऑर्गन्स जिस तरह ब्रेन की डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं डिमेंशिया वगैरह है अल्जाइमर्स ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम वगैरह के जो पेशेंट्स हैं दे विल इंशाल्लाह। हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। वी आर लिविंग इन गुड टाइम्स। अब आपने तीनों डिजीजेस जो तीनों जो ट्रीटमेंट्स हैं रिजेनरेटिव उनको आपने इकट्ठे जिक्र किया कि इनमें से कुछ भी कर सकते हैं लेकिन कंपैरेटिवली यस। एक्सोसोम्स वर्सेस पीआरपी वर्सेस स्टेम सेल्स व्हिच ट्रीटमेंट हैज़ द बेस्ट रिजल्ट्स और कौन-सी ट्रीटमेंट आप अपने पेशेंट्स के लिए कॉमनली यूज़ करते हैं? सर जो पीआरपी है, बेसिकली डिफरेंशिएट इस तरह किया जा सकता है कि जो स्ट्रेंथ इनकी तीनों की है, दैट गेट डिफरेंट इन डिफरेंट मोडालिटीज। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट पीआरपी, इट हैज दोज ग्रोथ फैक्टर्स, इट हैज दोज ट्रांसमिटर्स, it has those platelets which go and heal a certain tissue, but the concentration of that solution is, or that growth factor is not that much. हम उसको इंजेक्ट तो कर सकते हैं और इंजेक्ट करते भी हैं, उसका फ़ायदा भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डिफरेंट आर्टिकल्स देखें तो उसमें कहा यह जाता है कि अगर हमने किसी को स्टेम सेल्स इंजेक्ट करने हैं या एक्सोसोम्स इंजेक्ट करने हैं, तो उनका जो नंबर है इट शुड बी बिटवीन 5 टू 6 बिलियन सेल्स, और 5 टू 6 मिलियन एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स, जो हमने इन 1 मिलीमीटर और 1 मिलीलीटर और 1.5 टू 2 मिलीलीटर। PRP does have a very good effect. It is the cheapest source. It is the most available or ready to use source for a patient. At all of the source है there and then available है, cost effective है, और पेशेंट को उसका फ़ायदा भी है। लेकिन उसमें ये कंसंट्रेशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लैब में हम इसको उस तरह से असेस नहीं करते, और इसको कंसंट्रेटेड बनाया भी नहीं जा सकता। इसके बरक्स अगर हम स्टेम सेल्स को देखें, तो स्टेम सेल्स को जब हम सेपरेट करते हैं, वी गो इनटू द लैब, वी प्रोसेस देम, वी गेट अ काउंट फॉर देम, और जब हमें उनका काउंट मिल जाता है, हमें रिक्वायर्ड चीज़ मिल जाती है, तो उस काउंट को हम फिर क्या करते हैं, हम थोड़े से पीआरपी सॉल्वेंट में उसको मिक्स करते हैं, और फिर उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। सो पीआरपी इज़ मोर लाइक अ बेस और सॉल्वेंट, जिसके अंदर हमने स्टेम सेल इम्बेड कर दिए और हमने वो रिक्वायर्ड टिश्यू में लगा दिए। क्योंकि पीआरपी उसी पेशेंट का है, उसी पेशेंट का ब्लड फैक्टर है, और वो जो सेल्स हैं, वो उसकी एक बड़ा अच्छी एक, आप कह लें कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है उसके लिए फ़ायदा देता है, और फिर वो जो सेल काउंट है वो पूरा होके भी जा रहा है। तीसरी चीज़ है एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स का अगेन हम कंट्रोल्ड जो नंबर है वो कर सकते हैं, और ये हमें इस चीज़ का फ़ायदा है, लेकिन चूंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो ये इट्स नॉट एज गुड एज स्टेम सेल्स। तो मोस्टली हम पीआरपी यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, रेडीली अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम हमें उससे राइज़ नहीं होता, और पेशेंट फ़ौरन ऑप्ट भी कर देते हैं। की अवेलेबिलिटी, उसको टाइम देना, और फिर उसने वो सेशंस मल्टीपल लेने हैं, और उसमें भी, लेकिन अगेन इट्स समथिंग जो हम काउंट के साथ कर सकते हैं। इसके बरक्स जो स्टेम सेल्स हैं, उनका जब हम प्रॉपर, हमें जब तक काउंट नहीं मिलता है और हम उसको तैयार करके, तो फिर हम पेशेंट के लिए जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ों में ये इस तरह का डिफरेंस आता है, और हम यूज़ तीनों चीज़ें करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट की जो, आप कह लें कि चॉइस के ऊपर करते हैं। सही।
और ये स्टेम सेल्स कलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? ये स्टेम सेल्स आप किस तरह कलेक्ट करते हैं? सोती हुई प्रेग्नेंट खवातीन के अंदर कोई सुई डाल के एम्ब्रियो ले लेते हैं या कहाँ से सर, लाते हैं आप स्टेम सेल्स? जी सर। अच्छा सर, इसके लिए जो आप कह लें कि वी नीड अ प्रॉपर सेटअप जिसको हम स्टेम सेल लैब कहते हैं। मल्टीपल स्टेम सेल लैब्स काम कर रही हैं और मेरी हुँ, एफिलिएशन जो है मतलब मैं इसमें ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि माय सुपरवाइज़र डॉक्टर आई वर्क विद हिम फॉर 5 इयर्स एंड ही इज़ माय सुपरवाइज़र इन फॉर डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन। हमने जब ये आई डिड माय 2 इयर्स फेलोशिप विद हिम, he was the person who, for the first time, who developed a lab in Pakistan which satisfied the healthcare commission standards और जिसने जिनको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मिली हेल्थ केयर कमीशन से, जिसको हम जीएमपी रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। आईएसओ 9001 सुनते हैं या इस तरह, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। जीएमपी इज जो मतलब एक है और हेल्थ केयर कमीशन की सर्टिफिकेशन तो पाकिस्तान में मैंडेटरी समझी जाती है। अच्छा, इस लैब में हमें हमारा वी हैव अ इक्विपमेंट जिसमें किया जाता है कि लेट्स से इफ वी टॉक फर्स्ट अबाउट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, तो हम पेशेंट का मतलब जो भी डोनर है उससे पहले उसका कॉन्सेंट लिया जाता है और उसका कॉन्सेंट लेने के बाद जो प्लेसेंटा है उसको रिट्रीव किया जाता है लैब में। उसको फर्स्ट उसकी जो उसको प्रोसेसिंग के बाद जिसमें कुछ स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज हैं, जैसे हमने एच आई बी, हेपेटाइटिस बी, सी, एच आई वी, सिफिलिस, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इसके इसको हम स्क्रीनिंग पेशेंट की करते हैं और उसके बाद जो प्लेसेंटा है उसको स्क्रीन किया जाता है और फिर प्लेसेंटा जो है उसके गिर्द एक जो अगर आप देखें जो ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं जो umbilical कॉर्ड की, उसके गिर्द एक थिक एक वाइटिश आपको एक कोटिंग याद होगी जिसको हम वॉटन जेली बोलते हैं। दैट इज हुँ, बेसिकली हुँ। दैट वॉटन जेली इज ऑफ mesenchymal रीजन। उस वॉटन जेली को सेपरेट किया पील ऑफ किया जाता है उन ब्लड वेसल्स के साथ। वो जो वॉटन जेली है दैट इज ऑफ mesenchymal रीजन। उस वॉटन जेली को अगेन सेपरेट करके प्रोसेस करके उसको छोटे छोटे पीसेस में करके उसको न्यूट्रिशन दे के उसको पैटी डिश में एक आप कह रहे हैं कि एक कॉलोनी उसके थ्रू mesenchymal स्टेम सेल्स की बनाई जाती है। That is considered to be the best source in the world for mesenchymal stem cell origin from umbilical cord. सही। ठीक सर। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा जो डिलीवरी के बाद बेबी पैदा हो गया, जो प्लेसेंटा जो पहले डिस्कार्ड कर दिया जाता जी था, जी उसको अब आप यूज़ कर रहे हैं टू एक्सट्रैक्ट स्टेम एक्सट्रैक्ट सेल्स। स्टेम सेल्स जो umbilical cord based स्टेम सेल्स हैं वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अच्छा, सही, उसके सही। बाद जो दूसरे स्टेम सेल्स जिनके बारे में मैंने अभी कहा कि जो अडल्ट सोर्स है वो उनका जो है उनकी डिफरेंट जगह है। फॉर एग्जांपल बोन मैरो, जैसे पोस्टीरियर लेग फोसा से हम डायरेक्टली इंजेक्ट करके नीडल के थ्रू वहाँ से कुछ एक एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, या एडिपोज टिश्यू बेली से फैट से हम एडिपोज टिश्यू एडिपोज ड्राइव्ड मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स हैं वो भी हम वहाँ से सोर्स किया जा सकता है। या फिर देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग सोर्स जो मैं अभी आपके सामने जिक्र करूंगा एंड यू वुड लव टू हियर इट, दैट वी कॉल पेरिफेरल ब्लड ड्राइव्ड मोनोन्यूक्लियर सेल्स। हुँ। हम क्या करते हैं कि हम बोन मैरो को स्टिमुलेट करते थ्रू सर्टेन ड्रग्स। जैसे मैं अभी मतलब देयर इज अ ड्रग व्हिच इज नोन विद द नेम ऑफ फिलक्रेस्टिन। ओनली यूज्ड हाँ जी, नियोपोजिन। हाँ जी, उसमें जीएमसीएस है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो हुँ, ये क्या करती है जाके बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है। जब ये वन्स स्टिमुलेट द बोन मैरो, वहाँ से जो सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन शुरू होती है और ब्लड जो पेरिफेरल ब्लड में मोनोन्यूक्लियर सेल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो दीज़ मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैज़ द कैपेसिटी, इस पे मल्टीपल पब्लिकेशंस आपको इस वक़्त ऑनलाइन मिल जाएँगी कि दीज़ मोनोन्यूक्लियर सेल्स आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स ऑफ मेसेंकाइमल रीजन। और हम क्या करते हैं कि हम पेरिफेरल ब्लड से, जैसे हम एक उसका एक प्रोसेस है, जैसे आपने पेशेंट डायलिसिस का पेशेंट देखा होगा कि एक मशीन के साथ हम पेशेंट को अटैच करते हैं, ब्लड जाता है और एक थ्रू डिफरेंट प्रोसेस फिर वापस आ जाता है। तो ये क्या करते हैं कि हम मतलब एक पेशेंट को के साथ एक बड़े प्रोसेस, एक बड़े रिफाइंड किस्म का सेंट्रीफ्यूज अटैच होते हैं। हुँ। वो ब्लड जाता है, वो पेशेंट का ब्लड सेंट्रीफ्यूज होता है बड़ी रिफाइंड फॉर्म में वहाँ से मोर फिर लाइक प्लाज़्माफरेसिस या प्लाज़्मा, प्लाज़्मा एक्सचेंज की एग्ज़ैक्टली तरह। सर, हाँ जी। एग्ज़ैक्टली। जी, जी। और फिर उसमें फिर क्या करते वो जो एक कॉलोनी या फिर वो जो सेल्स हैं, जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है, वो अगेन इट गोज़ टू द लैब, गेट प्रोसेस्ड और एक कॉलोनी 5 टू 6 मिलियन सेल्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स की ऑफ ऑटोलॉगस सोर्स सेम पेशेंट से हमें एक कॉलोनी मिल जाती है, व्हिच कैन बी इंजेक्टेड लोकली इन एनी इन्फ्लेम्ड और एनी डिजीज़ टिश्यू, व्हिच हेल्प्स इन सही, हीलिंग। सही।
तो ये तो ये डिफरेंट एडिपोज तरीके। टिश्यू से जो आपने स्टेम सेल के एक्सट्रैक्शन की बात की, इसका मुझे नॉलेज नहीं था, ये मैंने पहली दफ़ा सुना है। तो अच्छा। यानी कि मोटे लोगों की फिर डिमांड बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि हम एडिपोज टिश्यू को काफ़ी यूज़लेस समझते हैं यार, वी हैव टू वेस्ट कि लेकिन हमने सर, ये सारा फैट लूज़ करना है, तो उसको लूज़ ना करें, आप जाके बेच दें लैब में। सर ऐसा भी हो सकता है, उसमें ये होता है कि हमें वी नीड अ वेरी, मतलब ऑलमोस्ट 10 15 टू 20 ml ऑफ, तो तो एक ये ऑटोलोगस की जो आपने बात की, इसका मतलब है कि जिस शख्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसी के अपने स्टेम सेल्स उसी के आप अपने स्टेम सेल्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जब एक जी। दफ़ा ये वो भी ट्रीटमेंट के लिए आ गया, उसके बाद दे हैव टू गो टू द लैब, जी, गेट जी। दिस प्रोसेस मतलब डन। जिसमें मतलब, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, जैसे हम अगर हम अपने सोर्स को अम्बिलिकल कॉर्ड से लेना चाहें, तो वो तो हम एक ऑटोलोगस सोर्स हो गया, हमने जो डोनर से लिया। और अगर हम पेशेंट के अपने ऑटोलोगस सोर्स पे करेंगे, तो फिर पेशेंट को खुद पहले प्रिपेयर करना है, उसको हम स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम सर्टेन वी पुट इन ऑन सर्टेन ड्रग फॉर 3 टू 4 डेज़, 4 टू 5 डेज़, और उसके बाद फिर हम उसको लैब में जाना पड़ता है, और उसको प्रोसेस करवा के 2-3 घंटे का रखते हैं। उसके बाद फिर वो ही इज़ फ्री टू। तो ऑटोलोगस जो सोर्स है, उस सारे प्रोसेस में टू गेट द स्टेम सेल्स रेडी, इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है और मरीज़ को कितने विज़िट्स करने पड़ते हैं जस्ट टू गेट द स्टेम सेल्स? सर, टू जो पहले असेसमेंट के बाद हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं अबाउट द मेडिसिन जो उसने लेनी है, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया। हुँ, और हुँ। उसके बाद पेशेंट ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर, जो पाकिस्तान में जो हमारा प्रोटोकॉल है, कि वी कॉल द पेशेंट ऑन द वेरी सेम डे, और अर्ली मॉर्निंग में हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, फिर वो लैब भेज देते हैं, पेशेंट एडमिट हो जाता है आके, और फिर वो ही स्टेज देयर फॉर द डे। और इवनिंग में फिर लैब है, वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर देती है, और फिर हम पेशेंट को राउंड द आइन चेक कर देते हैं, और फिर पेशेंट 2 सही। घंटे पोस्ट प्रोसीजर रहता है, और फिर वो घर चला जाता है। दिस इज़ अ चलिए वन डे ज़बरदस्त। प्रोसीजर। अभी ठीक है, वी स्टिल हैव अ लॉट टू डिस्कस। अभी हम जो सारा स्टेम सेल का प्रोसीजर है एक पेशेंट के लिए, व्हाट डज़ इट लुक लाइक? पेशेंट किस तरह के प्रोसेस से गुज़रता है? इसकी कॉस्ट क्या है? अफोर्डेबिलिटी क्या है? और आप पाकिस्तान में इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन, लेकिन वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर। आप थोड़ा-सा पानी पी लें और साँस ले लें। उसके बाद वी विल गेट बैक टुगेदर इंशाल्लाह इन 5 मिनट्स। व्यूअर्स, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। It's going to be even more interesting than our first session. So we'll log off here and see you again soon in our second session with Dr. Irfan Karamat. Stay tuned.